ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਕੁਛ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ 17 ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜੋ ਵਿਅਸਤਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਕ ਆਫ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜੇ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਜਟ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਧਾਉਣ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵਧਾਉਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ। ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ MLAs ਇਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ MLAs। ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਲੋ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਜਿਹੜਾ MLA ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ MLA ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਵਾਰੀ MLA ਬਣੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕੀ, ਕਾਬਿਲ ਲੋਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਹਾਂ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੌਜੀਕਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਬਾਕਸ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ CM ਨੇ ਆਪ SGPC ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ, ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਟਚਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਟ ਕੰਸਰਨ ਪੀਪਲ ਫਰਮ ਆਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SGPC ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਚੀਫ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, SGPC ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ 2015 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਸਲਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਜੋ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਫੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਣਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਪਾਵਰਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੈੱਡ ਭਾਵੇਂ ਸੀਐਮ ਹੋਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਟੌਪ ਆਈਐਸ ਆਫਿਸਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਥਰੂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਮਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੂਰਤ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੌਸਿਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਅਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐਂਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਫਾਰਮਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਮਾਨੇਸਰ, ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਈਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਕੈਚ 22 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਿਗਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਬ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਦੈਮ। ਜੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਰੀਅਲੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਇਟ ਫॉर them, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਫੜੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਕਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਜਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਦੋ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਇੰਜਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੀ। ठीक है सर, ALT न्यूज़ के को फाउंडर ज़ुबैर, उनको अरेस्ट किया गया था, और अब इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उनको बाहर से फंडिंग मिल रही है, पाकिस्तान से भी फंडिंग मिल रही है। देखो, अगर जो कोर्ट ने उनको 14 दिन की और जुडिशियल रिमांड में ले लिया है, और उनके लॉयर की ये आर्ग्यूमेंट है कि कंपनी में आए हैं पैसे, उनके पास पर्सनली नहीं आए, वो तो सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर और शेयर होल्डर हैं। तो आप देखिए कैसी बचकाना आर्ग्यूमेंट है। जो कंपनी प्रैक्टिकली हर पर्पस के लिए आप ही फाउंडर है और आप ही चला रहे हैं, तो उसके अंदर अगर ऐसी जगह से फॉरेन से पैसे आ रहे हैं विच इज नॉट एज पर द नॉर्म्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि किसी कंपनी का डायरेक्टर होना अपराध नहीं है, अपराध नहीं है, पर अगर उस कंपनी पे कुछ केस लगते हैं तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए तो वो है, उनके ऊपर एक कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है, तो उस लीगल एंटिटी के पीछे कौन से लोग होते हैं जिनके ऊपर वो केस चलेगा, वो उसके डायरेक्टर ही होते हैं।
राइट। तो ये आर्ग्यूमेंट तो उनकी वैलिड नहीं है, और इसके अंदर ऑफ कोर्स अगर कोर्ट को लगा विद इन इट्स, कोर्ट को अपनी विजडम में लगा कि इनको पुलिस रिमांड में रखने की जरूरत है, अगर आपके पास पाकिस्तान और सीरिया से पैसे आ रहे हैं जी, सिंगापुर वगैरह और भी देशों से आए, अगर आप फॉरेन ट्रांजैक्शन आपके पास हो रही है और आपने प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं की है, और उसके बाद द काइंड ऑफ न्यूज रिपोर्टिंग दैट यू आर डूइंग विच इज क्रिएटिंग अनरेस्ट इन द कंट्री, विच इज क्रिएटिंग डिसहार्मनी इन द कंट्री, तो मेरे को बताओ कि क्या गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन नहीं लेगी? क्या एटलीस्ट वो इंक्वायरी नहीं करेगी? क्या वो आपसे पूछताछ नहीं करेगी? बिल्कुल। ये सारी चीजें तो आप फिर एक्सपेक्ट करो। अगर आप आज, मैं और आप, चाहे हम हम मीडिया में जी, आज मेरे पास अगर पाकिस्तान से ट्रांजैक्शन आनी शुरू होती है तो क्या उसकी तफ्तीश बनती की नहीं है? ऑटोमेटिकली सब लोग सोचेंगे नहीं कि ये एक जर्नल जो मीडिया है उसको पाकिस्तान से कौन सा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है या डोनेशन दे रहा है जी, और उनका पर्पस क्या है, विजन क्या है? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान और सीरिया के बीच में जो उनका ऐसा कौन सा मिशन है जिसकी सपोर्ट उनको, जिसके लिए वो डोनेशन देने को तैयार है? जी, आपने ऐसा कौन सा अपना प्रपोजिशन बताई है या पर्पस बताया है एज अ मीडिया कंपनी, एज ऑल्ट न्यूज कंपनी, जिसके कारण पाकिस्तान में और सीरिया में कुछ दरिया दिल लोगों को ये लगता है कि यार ये तो बहुत ही महान काम कर रहे हैं, इनको डोनेशन देनी चाहिए? बिल्कुल, राइट। और दूसरी बात है कि अगर वो एक कंपनी है जी, राइट, तो उसमें डोनेशन कैसे ली जा सकती है? जी, उसमें किस तरीके से फंड रेज किए जा सकते हैं, ये भी क्वेश्चंस हैं। उसको इनकम की तरह दिखाया गया कि इन्वेस्टमेंट की तरह दिखाया गया? ये सारे क्वेश्चंस का जवाब तो उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल। अब होता क्या है कि क्योंकि एक इस तरह की एक लॉबी है जो जिनको काइंड ऑफ सपोर्ट है, ऐसे फॉरेन से भी हम हमेशा बात करते हैं और डोमेस्टिकली भी है, तो वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं ऐसे किसी की फ्रीडम के ऊपर ये किसी की फ्रीडम को छीना जा रहा है, अटैक है फ्रीडम के ऊपर, अटैक है। तो मेरे को ये लगता है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, हर जो ट्रांजैक्शन होती है उनकी एक पेपर ट्रेल होती है, अगर वो विद इन द नॉर्म्स है तो ही विल बी आउट। जी सर, इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी की बात चल रही थी। आरबीआई ने कहा है कि वो थ्रेट है भारत के लिए। मेरे को लगता है कि आरबीआई अपने इस एनालिसिस में काफी हद तक ठीक है। मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से इस पे बात करूंगा क्योंकि कई आर्गुमेंट्स यूएस के पर्सपेक्टिव से दी सकती हैं, किसी और इकोनॉमी वो अलग होंगी, उनकी रियलिटी अलग है, हमारी रियलिटी अलग है। आज क्रिप्टो करेंसी के काफी केस सामने आए हैं जहां पे जो इलीगल तरीके से मनी की ट्रांजैक्शन हो रही है। जी। दूसरा जो इससे सबसे बड़ा इंपैक्ट आ रहा है कि जो लोग इसकी इन्वेस्टमेंट या इसकी वैल्यू को नहीं समझते, वो लोग लालच में आके इसमें स्पेकुलेट कर रहे हैं, ये लॉटरी की तरह, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया जी। और उनके बेसिस क्या है? सेकेंडली, इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है। आज आप एक क्रिप्टो करेंसी शुरू करके उसका प्राइस रखे, अगर आप सही मार्केट कर पाए, उसकी डिमांड बना के आप उसमें से निकल जाओ। आज उसकी वैल्यू 1 रुपया है, अगले दिन 1 पैसा रह जाएगी, तो 99 पैसे बाकी सब लोगों के चले गए जी। तो बेसिकली ये एक इंडियन मार्केट जो हमारी जिस स्टेज में हम हैं उसके लिए इट्स अ वेरी डेंजरस। आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू गवर्नमेंट को भी, आज अभी हम इससे पहले जिस केस की बात कर रहे थे, क्योंकि पैसा अकाउंट्स में आ रहा था तो गवर्नमेंट ट्रेस कर पाती है कि पाकिस्तान से आया, सीरिया से आया। जब क्रिप्टो करेंसी से कोई भी लोग जो इंडिया में अनरेस्ट या डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं, वो कहीं से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और इंडिया को पता भी नहीं चलेगा जी। इट विल बी वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ही ऐसी कि उसकी ट्रेल को देख पाना इम्पॉसिबल होता है जी। तो और दूसरी बात, आप एक ही देश में 2 करेंसीज फंडामेंटली कैसे चला सकते हैं? बिल्कुल, करेंसी चलाने का हक सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है और आरबीआई को है जी। आज मैं अपनी करेंसी शुरू कर दूं तो इसका मतलब क्या है? चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे फिजिकल हो, तो इसका मतलब है कि आप पूरे देश की इकोनॉमी को वीक कर सकते हैं। आज रुपया अगर डॉलर के ऊपर नीचे जाता है, सप्लाई डिमांड की गेम है जी। तो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप रुपए की डिमांड को ऊपर नीचे करके मैनिपुलेट करके देश की करेंसी की वैल्यूएशन को भी मैनिपुलेट कर सकते हो जी। तो जब तक हमारे लिए पास बिल्कुल रोबोस्ट सिस्टम इसको पूरा ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए और इसकी लिंकिंग, और लेट सपोज लोग बात करते हैं जी ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी को नहीं रोकना चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट करे जिसका लिंक हो रुपए के साथ जी। डिजिटल करेंसी शुड अगेन, अगर वो करेंसी है तो वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए। बिल्कुल, आपको अगर उस पर ट्रांजैक्शन करनी है, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए ना। अगर क्रिप्टो करेंसी का पर्पस ये है कि किसी को पता ना चले आप क्या कर रहे हो, तो वो अलाउड नहीं होना चाहिए। तो आरबीआई की ये ऑब्जर्वेशन की ये डेंजरस है, काफी हद तक रीजनेबल है, और अभी इस पे और विचार करने की जरूरत है बिफोर हम अपने, और काफी केस आए हैं जो बिल्कुल रिमोट एरिया में लोगों के पैसे लगवाए गए और वो पैसे डूब गए। ऐसी बहुत कंप्लेंट्स आई हैं। क्रिप्टो करेंसी की इतनी एड्स चल रही हैं
उनके प्लेटफॉर्म्स की इतनी ऐड चल रही हैं, तो जो सबसे बेसिकली अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है उसका सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान हो रहा है। तो हमें अपनी पब्लिक को बचाना है। तो जब तक हम प्रिपेयर्ड नहीं है इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको फंडामेंटली अच्छे तरीके से समझते नहीं, उससे पहले क्रिप्टो करेंसी को नहीं मार्केट में लाना चाहिए जी। आप इसको इमेजिन करिए एक वायरस की तरह। बिल्कुल। एक वायरस को जब तक आप उसके पर्पस, उसका यूज और सब कुछ नहीं समझते, अगर उसको आप मार्केट में लॉन्च कर देंगे, उस वायरस को अगर आप रिलीज कर देंगे जो डेंजरस हो सकता है, तो आप अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। पर मार्केट में बहुत लोग हैं इंडिया में जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए और दिनों में आप अच्छी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिले, आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। मिले। देखो यही तो रिस्क है जी। आप फंडामेंटली उसके नीचे की इकोनॉमिक वैल्यू है। आज एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 1 रुपए है, अगले दिन वो 1 पैसे हो जाती है। ऐसे बहुत केसेस हुए, कई क्रिप्टो करेंसीज में। किस कारण हो गई? क्यों करेंसी की डिमांड आज रुपए की अगर वैल्यू ऊपर नीचे जाती है, एक रेंज में जाती है, और क्यों जाती है, उसके पीछे इकोनॉमिक और फंडामेंटल रीजन होते हैं। बिल्कुल। आज अगर क्रिप्टो की वैल्यू किसी दिन, मैं अगर जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, कभी 40, 50, 60 हजार डॉलर का हो जाता है, कभी 15 हजार डॉलर का रह जाता है, कभी वो 50 डॉलर, उसका फंडामेंटल रीजन क्या है? जी। तो इसका मतलब स्पेकुलेशन, मार्केट मैनिपुलेशन हो रही है। मार्केट मैनिपुलेशन में हमेशा छोटा प्लेयर मरता है और बड़ा प्लेयर उसके फायदा उठाता है। जी। तो ऐसे ही कुछ प्लेयर हैं जो बीच में, ये उस मल्टी लेवल स्कीम की तरह बनता जा रहा है। तो ये रीजन है कि लोग मोटिवेट करते हैं, कुछ बच्चे, कुछ यंगस्टर्स या कुछ इवन एक्सपीरियंस लोग भी पैसे के लालच में मोटिवेट हो जाते हैं और अपना पैसा रिस्क में डाल देते हैं। जी बिल्कुल। सर, क्रिप्टो की बात हुई, और इसके साथ ही अगर डाटा की बात करें, जो मोबाइल ऐप्स हैं, जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उन पे भी सवाल उठते रहे हैं कि वो टाइम टू टाइम वो डाटा लीक करते रहे हैं, सरकारों को देते रहे हैं। तो ऐसी बात एक टिकटॉक की हुई। टिकटॉक ने जवाब दिया है यूएस को कि हमने चाइना की सरकार को हमने कोई डाटा नहीं दिया अभी तक। देखो, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है जी, पर मेरे को इस स्टेटमेंट पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं, थोड़े दिन पहले इनफैक्ट उनकी कुछ इंटरनल कन्वर्सेशंस लीक हुई थी इंजीनियर्स की, जिसमें वो कह रहे थे कि देखो, चाइना के अंदर बैठे जो हमारे इंजीनियर हैं वो सारा डाटा देख सकते हैं। जी। उसके बाद फिर इंक्वायरी शुरू हुई जब ये कन्वर्सेशन लीक हो गई। जी। तो अब वो कह रहे हैं कि हमारे डेवलपर्स कोड पे और एल्गोरिदम पे तो काम कर सकते हैं पर डाटा नहीं देख सकते। तो हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जहां से आप डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। जी। तो बेसिकली जब आर्किटेक्ट ही आप हो और जब आपके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है, टिकटॉक पे ही क्यों इल्जाम लग रहा है, इंडिया ने क्यों बैन किया? क्योंकि ये काफी हद तक इनफ क्रेडिबल सबूत मिल चुके थे कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का टूल है। टिकटॉक को उनकी सपोर्ट है और वो हर देश के हर लैपटॉप में, देखो, ये कोई छोटी मोटी डाटा लीक करने से लोग सोचते हैं यार मेरा नाम, फोन नंबर चला गया तो क्या फर्क पड़ता है। ये केस नहीं है। वो इस तरह के टूल्स के थ्रू वो वहां के सारे सिस्टम्स के अंदर वो अपने स्पाईवेयर डाल देते हैं। वो ऐसे सॉफ्टवेयर डालते हैं जो सारी ट्रांजैक्शन सब कुछ ट्रैक करते हैं। उससे उनको एक्सेस हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के टूल्स का मिल जाता है, लेट्स से बैंकिंग सिस्टम्स का, ये सारी चीजों का एक्सेस मिल जाता है। और वो एक ही दिन में अचानक, लेट्स से कभी लड़ाई होती है तो वो अचानक पूरे देश के आईटी सिस्टम्स को ब्रिंग डाउन कर सकते हैं। लोगों के सिस्टम्स को, एक पूरा वहां पे, लेट्स सपोज कि आप इमेजिन करो लाखों करोड़ों लोगों के जो सिस्टम से डाउन हो जाए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के सिस्टम डाउन हो जाए, कितना हड़कंप मच जाएगा। मार्केट कैसे डाउन जा सकता है, लोग अपनी ट्रेडिंग भी तो उस पर करते हैं, तो उनको आपकी सारी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री दिखनी शुरू हो जाती है। तो मौका आने पे चाइना की सरकार आपके पूरे के पूरे सिस्टम्स, कई करोड़ लोगों के सॉफ्टवेयर्स, मोबाइल्स और लैपटॉप्स के थ्रू मैनेज कर सकती है। सर, वर्ल्ड बैंक ने एक पेंडेमिक प्रिवेंशन फंड बनाया है जिसमें कोई भी आपदा आ जाए तो पूरे दुनिया में किसी भी देश की हेल्प की जा सके। बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने WHO के साथ मिलके पेंडेमिक प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस फंड तैयार किया है। और इनिशियली इसमें $1 बिलियन, रफली 7,800 करोड़, अब तो 80 रुपए का रुपये हो गया तो 8,000 करोड़ आप मान लीजिए, उसके अंदर इनिशियली फंडिंग की गई है। इसमें गेट्स फाउंडेशन भी उसका पार्ट है और भी कई कंट्रीज ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है। देखो, ये एक लेसन मिला है हमें कि जब ये पेंडेमिक आया, पूरा वर्ल्ड कितना अनप्रिपेयर्ड था, उसके कारण कितने लोगों के रोजगार गए। हम अगर इसके लिए प्रिपेयर्ड होते, एक बेटर सिस्टम होता, बिफोर ये पेंडेमिक बन पाता, अगर इंफॉर्मेशन सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचती, तो जैसे हमने फायर प्रिवेंशन सिस्टम रखे होते हैं। मैं आपको हिस्टोरिकली बताऊं, पहले ऐसे फायर प्रिवेंशन सिस्टम नहीं होते थे। ये तब आए जब एक बार पूरा का पूरा शहर जल गया, जैसे लंदन। उसके बाद लोगों को लगा कि आग कभी भी लग सकती है, ऐसे पूरा का पूरा शहर जल सकता है।
तो उन्होंने फायर डिपार्टमेंट हमेशा, अब हर रोज तो फायर डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल। वो एक प्रिवेंटिव मेजर है। जी। तो आज हम जिस तरह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, इतना ट्रैवल होता है, तो किसी भी टाइम पे कोई भी बीमारी पेंडेमिक बन सकती है। जी। फिर उसकी इंफॉर्मेशन अगर वो सही टाइम पे कंट्रोल कर दिया जाए, और इस बार हमने ये भी देखा जब वैक्सीन की बात आई, बहुत कम देशों के पास टाइमली वैक्सीनेशन पहुंच पाई। अमीर देशों ने अपनी R&D जल्दी करके अपने आप को तो अपने देशों में तो वैक्सीन प्रोवाइड कर पाए, और भारत भी खुशकिस्मत था क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी, वो सहालियत थी, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी, वो सलाहियत थी कि हम खुद अपनी वैक्सीन बना पाए। अदरवाइज इंडिया जैसे बड़े कंट्री में भी बहुत बड़े चैलेंज आ सकते थे। जी। आज अगर हम इकोनॉमिक रिकवरी कर पा रहे हैं, नॉर्मली पूरी दुनिया चल पा रही है, ये वैक्सीनेशन के कारण है। जी। तो फ्यूचर में इस तरह के पेंडेमिक से हमें रहना, ये नहीं सोचना है कि ये हर 100 साल बाद ही आना, ये कभी भी आ सकता है। जी। तो इस पे टाइमली एक्शन लेना बहुत क्रिटिकल बात है। और मेरे को लगता है कि जो लोग, अब हम सब लोग कोविड से निकले हैं, जी। हम सब एग्री करेंगे कि $1 बिलियन बहुत कम है। इस पे एक मेजर फोकस होना चाहिए ताकि दुनिया चैन की सांस ले पाए। कहीं पे भी कोई भी नई तरह की इन्फेक्शन शुरू होती है, उसकी जो जीन मैपिंग, उसकी फैसिलिटीज होनी चाहिए। इमीडिएटली एक टीम ऑफ वायरोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स या कम्युनिटी मेडिसिन वाले लोग, एक टीम रेडी होनी चाहिए कि वो जल्दी से फ्लाई करेगी, उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करेगी, उसके डाटा पे एनालिसिस शुरू हो जाएगा। जी। फिर उस तरह के केस की रिपोर्टिंग का सिस्टम होना चाहिए। इट शुड बी इंटीग्रेटेड टू द हेल्थ सर्विसेज ऑफ ईच कंट्री, देन ईच स्टेट एंड ईच सिटी। बिल्कुल। तो ये मेरे को लगता है कि एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। अनफॉर्चुनेटली हमने कोविड से निकल के इसको सीखा। अगर इसके बारे में कुछ विजनरी लोग पहले भी बात करते रहे, अगर मैं बिल गेट्स की भी बात करूं, तो मेरे को लगता है कि जिस तरह से हम लड़ाई ना हो जाए, हम पे कोई अटैक ना कर दे, वेपन्स अपने पास रेडी रखते हैं, ऐसे वायरसेस भी हम पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम लड़ाई की तैयारी रखते हैं, उसी तरह की वॉर लेवल पे हमें तैयारी वायरसेस के खिलाफ रखनी चाहिए। तो ये जो पेंडेमिक प्रिवेंशन फंड जो बना है, दैट वुड बी आई थिंक गुड स्टेप। हर देश को और हर स्टेट को बनाना चाहिए ऐसा फंड। हर स्टेट को बनाना चाहिए, पर गरीब देश नहीं अफोर्ड कर सकते। तो एक WHO वाला फंड स्पेशली पुअर कंट्रीज के लिए, और ज़्यादातर कंट्रीज में इस तरह की कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर टास्क फोर्स होती है, पर वो उतनी अलर्टनेस और उस पर उतने रिसोर्सेज नहीं खर्च किए जाते। जी। तो आज जैसे मैं अगर बात करूं, जिस तरह से फायर प्रिवेंशन या किसी और तरह की आपदा के लिए या लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेंशन जैसे हम पुलिस फोर्स रखते हैं, इसी तरह से ये फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। जी, शुक्रिया सर मीनिंगफुल इनसाइट्स के लिए, ज़रूरी जानकारी के लिए। इसी तरह के करंट अफेयर्स और ज़रूरी जानकारी के लिए देखते रहिए पंजाब टुडे।